which needs the listener into the song, it introduces the song and sets the tone. लेकिन उसके बाद जितने आते हैं वो second paragraph, it is what? अंतरा. Is it clear? मूर्छना. मूर्छना is simply, I said that chromatic scales. क्या बोलेंगे हम? मूर्छना can be defined as a sequence of 7 notes in आरोही and अवरोही. आरोही and थोड़ा सा, if I go back, sorry थोड़ा सा आगे है. I said there is if you'll go into the Carnatic music, there is, I said that parent ragas and there is a Janya ragas. Yes or not? So parent ragas, if it is going along with the sa re ga ma pa dha ni sa, so they are going along with this. The Janya raga means child raga. One it is, I said that it is parent raga. That is, we can say Janak. Another is, I said the Janya raga, the child. तो चाइल्ड रागा में आपको पूरे नोट्स ऊपर नहीं जाते, वो कहीं भी कुछ भी घूम सकते हैं, बच्चा है ना. अरे जब तक आप, मैंने आप लोगों को बोला, you can say they carry all the 7 swaras in the ascending order and the same 7 swaras in the descending order. In which mean? Janka. So please वो सारी चीज समझिए, so that you can be understood those things also. And the notes ascend and descend exactly in the same order. But यहाँ पे child raga, that is Janya raga, में never it happens. Understood? Carnatic में which are the two? Janak raga and Janya raga. Janak raga has what I said, that the way it has gone up to the 7 notes, the same way it has to come to the 7 notes down, Arohi and Avrohi. But in case of Janya raga, there is nothing as such. I said that originates from the Janak raga. They uses all the same scale, same swara that parent uses, but may not use the same 7 swara in both the ascending and. So please understand that those areas. So when I'll come on to this, so that you are very good at understanding the music. क्या हमने बोला था? मूर्छना. And मूर्छना is, and I said that chromatic scales. What I said that it is? And then इसमें जो है 7 notes in आरोही. And I said that आरोही, मूर्छना is derived from the 7 notes. 7 notes से ही होता है. If all the 7 notes are used, then it is known as संपूर्णा. पहले भी सुना है आपने? संपूर्णा, सादाव, अवदाव. सुना है कि नहीं सुना है? संपूर्णा. यस, याद है ना? सदाव रागा में एक बोला था ना, रागा में 5 नोट्स के होते हैं, 6 नोट्स के भी, 7 नोट्स के भी, और वहीं से हम लोग 5 नोट्स के आगे पीछे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थोड़ा सा उसमें क्या है, रंग भरने के लिए, म्यूजिक को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए. तो दैट इज नोन एज व्हाट, इफ आई एम डूइंग ऑन द 5 नोट्स औदाव, इफ आई एम डूइंग ऑन द 6 नोट्स अप एंड डाउन शदाव, इफ आई एम डूइंग ऑन द 7 नोट्स संपूर्णा, एंड दैट इज नोन एज मूर्छना. तो मूर्छना क्या प्रोवाइड कर रहा है? से क्रोमेटिक स्केल. व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग? एंड मूर्छना कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ 7 नोट्स इन आरोही एंड अवरोही. तो उसमें 5 नोट्स का भी होगा, 6 नोट्स के भी होंगे, एंड इट विल बी ऑफ श्रुति. पहले ही समझा चुका हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रुति? 22 notes, micro notes, yes or not? Which is instrumental, which is in what? When you are singing, the in between shruti comes, in between. And the word shruti means the sound which can be heard by the ear, deal with the interval between the notes. When talking of shruti, we must determine the tonic first. The tonic is commonly understood as sa. So I said that it is the standard interval accepted as 22 shruti. It is not in a possible to sing 22 intervals of shruti, as it is not in a musical scale. It is better demonstrated the instrumental rather than. It is which one? Shruti is which one? Instrumental. It is not vocal. Yes or no? And how many shruti we have? 22. How many? And it is so subtle that without this application, no raga can be sung or played. रागा को गा नहीं सकते हैं. रागा किस पे डिपेंड है? थाट पे. थाट किस पे डिपेंड है? स्वर पे.
स्वर, थाट, रागा, और रागा में फिर डिवाइड किया हमने। यस है ना, क्लियर है? यस। तो हमने क्या देखा था? वर्ण, लय। वर्णा में 4 याद है? विच आर द 4? अस्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी। लय में विलंबित, मध्य, द्रुत, and thereafter मूर्छना। it is in itself 7 notes, 5 notes, 6 notes को आगे पीछे करना, क्रोमेटिक। यस आना। एंड श्रुति 22। गम का, यस, श्रुति लड़की थी जो क्या है, गम पी रही थी। which one I said that? गम का। I said oscillation of note which pleases the listener is the gam ka. It points out the way on how to attack a note, how to move from one or more notes to the other in a majestic style. It is in a pleasing the listener. Gam ka means oscillation. Yes or not? Yes. Gam ka means, it is not like arohi and avrohi. It is, I said, and particular notes पे ही आप क्या कर रहे हैं? देखा होगा ना गाते समय, पर्टिकुलर नोट पे ही आप व्हाट वी आर डूइंग, गोइंग अप एंड डाउन, ऑसिलेटिंग ऑन द पर्टिकुलर नोट। इट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट आपने पूरा एक 7 नोट्स बोला उसके बाद आप पीछे आ रहे हो। एंड वो कभी कभी सिंगर को देखते हो ना, वो गाना गाता है तो पर्टिकुलर को वो क्या करेगा वहां? यस और नॉट? यस और नॉट? गम का। क्या हमने बोला? गम का। आई सेड दैट attack a note and how to move from one to more notes to the others in a majestic style, और जिसको हम लोग सुन कर क्या हो जाते हैं? It is pleasing to listener। और आपने कभी देखा होगा सिंगर इज सिंगिंग द सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग गा रहा है, लेकिन उसी ओरिजिनल सॉन्ग में वो थोड़ा सा मुखड़ा के बाद अंतरा आया, उसी अंतरा पे लाइन दे रहा है, फिर अगेन बार बार मुखड़े पे आ रहा है, क्योंकि मुखड़े पे क्या है? द पीपल आर एंजॉइंग। एंड एक ही मुखड़े पर वो थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर रहा है, डाल रहा है बीच में गम का। Yes or not? He is putting oscillation so that you can understand. Is it clear? That is considered as what? Gamka. Clear? And the next one that we can understand what? Alap. Alap, slow rhythm, less exposition of raga. ये रागा का क्या है? Less exposition, और alap is very much important to ध्रुपद song and khayal. ध्रुपद एंड घयाल। तो देर आई सेड दैट अलाप, जोर एंड झाला, ये तीनों वर्ड आप याद कर रहे हैं। आलाप, जोर, आपने अल्लाह से जोर लगाया कि सारा झाल साफ कर दो। अलाप, जोर, झाला। अंडरस्टूड इट? तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अलाप। एंड ये दोनों कहां पे? अलाप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन विच? ध्रुपद सॉन्ग एंड ख्याल हिंदुस्तानी। स्लो रिदमलेस एक्सपोजिशन ऑफ द रागा, मतलब आपको ऐसे जाएगा कि वहीं पे मर गया बंदा थोड़ी देर में, वो बुड्ढा गा रहा है। गो एंड सी, आप देखना जाके, गिव सम काइंड ऑफ यूट्यूब में एंड से द ध्रुपद सॉन्ग। वो समझ में नहीं आ रहा कि वेदर इज सिंगिंग और नॉट, मतलब वो सांस चल रही है उसकी। अल्लाह, and there is very much important alap in which? Drupad and khayal. इतना ध्यान में रखिएगा। It is very slow, rhythmless, and usually the starting movement. Yes or not? Starting movement, alap. Clear? What is the, I said that alap क्या है? Very slow, rhythmless, and starting in the initial. And गाट, ये है मस्ती का गाट। ये क्या? मस्ती खानी, राजा खानी। और ये जितने भी म्यूजिशियन होते हैं यही करते हैं। वेर एवर दे गो, लोगों को म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए जो डांस कराते हैं इसी पे। द सेट कंपोजिशन विच इज नॉर्मली रिपीटेड बाय द आर्टिस्ट फॉर मैनी रीजन्स टू कीप द साइकिल गोइंग, विच सो हेल्प द तबला एंड अकम्पनिस्ट to develop the rhythmic varieties, use it as the foundation development of the raga with the laikari, or emphasis on the importance of the psalm and then first beat of any tala. तो पहले ही ताल पे वो बार बार आएगा, और उसमें क्या है? बगल वाला और क्या कर रहा है? उस पे भी जो तबला वाले ना, तो वो थोड़े से और भी इंटरेस्टिंग लाते हैं, नेक्स्ट टाइम और जोर से बजाते हैं। यस, तो वो क्या होता है कि सेम दे आर सेइंग द, आई सेड द रिपीटिंग द
नोट्स, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, आर्टिस्ट अपना थोड़ा थोड़ा रिदम वेराइटीज ला रहा है उसमें। और दो प्रकार के होते हैं, मस्ती खानी, और मस्ती खानी जो स्लोली होता है, और राजा खानी क्या होता है, फास्ट। इज इट क्लियर? मस्ती खानी इज व्हाट? यस, मस्ती में थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, राजा खानी। क्लियर? यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में